Good morning, students. Today we are going to start our first chapter of Moments. Name is The Lost Child, written by Mulkraj Anand. So, students, in the first, I am telling you the chapter sketch of this chapter. So, in the story, The Lost Child, the author tries to explore the mind of a child. This story also highlights a child's love for his parents. The child goes to a fair with his parents. He is very excited and wants sweets and toys which is displayed there. His parents don't buy these things for him, but very soon he gets separated from his parents as he is left behind looking at various toys and other things. When he realizes that his parents are nowhere near him, he starts crying unconsolably. He refuses everything which is offered by others. He only wants his parents and keeps crying. So, students, in this story, The Lost Child, the author tries to explore the mind of a child. इस स्टोरी में जो ऑथर है वो ट्राई करता है एक बच्चे के माइंड को बताता है। यह जो स्टोरी है इट हाईलाइट्स अ चाइल्ड लव, ये बताती है, हाईलाइट करती है एक चाइल्ड के लव को फॉर हिज पेरेंट्स के लिए। द चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। ही इज़ वेरी एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। और वहाँ पे वो एक्साइटेड होता है और चाहता है स्वीट्स टॉयज जो वहाँ डिस्प्ले किए जाते हैं। हिज पेरेंट्स डोंट बाय दीज थिंग्स फॉर हिम। उसके पेरेंट्स उसके लिए वो सब चीज़ें परचेज नहीं करते। बट वेरी सून ही गेट सेपरेटेड, जल्दी ही वो सेपरेट हो जाता है अपने पेरेंट्स से, बिकॉज ही इज़ लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि वो पीछे रह जाता है देखते हुए बहुत से टॉयज़ और दूसरी थिंग्स को। When he realizes, जब वो रियलाइज़ करता है कि उसके पेरेंट्स उसके पास नहीं है, वो स्टार्ट करता है क्राइंग करना। ही रिफ्यूजेज, और बाद में दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसे ऑफ़र की जाती हैं वही चीज़ें, बट वो लास्ट में मना कर देता है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय के उसके पेरेंट्स के। नाउ हियर इन दिस चैप्टर देयर आर three characters. So first is the lost child. He is the central character. जो बच्चा है जिसके बारे में चैप्टर है वही क्या है, सेंट्रल कैरेक्टर है। हु गेट्स फैसिनेटेड विद द आइटम्स एट द विलेज, जो कि फैसिनेट होता है उन आइटम से जो कि विलेज के स्प्रिंग फेयर में लगाए गए हैं, और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए वो अपने पेरेंट्स से पीछे रह जाता है और अपने पेरेंट्स को लॉस कर देता है। ही बिकम्स हार्ट ब्रोकन, और इससे जो उसका हार्ट है वो ब्रेक हो जाता है, लॉस हो जाता है उसका इंटरेस्ट सभी चीज़ों में जो पहले ले रहा होता है, और क्राइज करता है फॉर हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट हिज पेरेंट्स, they keep on asking the child to remain with them but are careless enough to lose him at the fair. They keep on asking the child to remain with them. वो कहते हैं अपने बेटे को कि उनके साथ रहें, but are careless enough to lose him. किंतु वो इतने ज़्यादा केयरलेस होते हैं कि वो अपने बेटे को ही फेयर में गुम कर बैठते हैं। नेक्स्ट द पर्सन हु फाउंड हिम, वह व्यक्ति जो कि उस बच्चे को मिलता है। ही इज़ अ वेरी हेल्पफुल पर्सन, वो एक हेल्पफुल पर्सन होता है। हु ट्राइज टू डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड बाय ऑफरिंग हिम मैनी थिंग्स बट फेज, वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि वो बच्चा उन चीज़ों को खरीद ले, वो ऑफ़र करता है उन चीज़ों को खरीदने के लिए उस बच्चे को, ताकि वो बच्चा रोए नहीं, और वो बट
वो जो बच्चा है वो उन सब चीज़ों को लेने के लिए मना कर देता है। Now students, I am telling you the summary of this chapter, means The Lost Child, written by Mulgraj Anand. First point is, child goes to a spring fair with his parents. It is the festival of spring and everyone in a happy mood is going to the fair. The child is going to the fair with his parents. He is very happy and excited. On the way to the fair, the child enjoys every moment and gets fascinated towards natural beauty. In the fair, the child is attracted towards sweets, toys displayed in the shops. He feels attracted towards the garland of gulmohar and the delicious gulab jamuns, but his parents resist from buying anything for him. The child wants to play, climb trees, catch the dragonflies and butterflies, but again his parents won't let him do any of this. The child sees Snake Charmer. He likes music played by the charmer and wants to stay there for some time, but his parents do not approve. As the child moves on with his parents, he sees a roundabout. Then he says, I want to go on the roundabout, please, father and mother. Now, point first is, child goes to a spring fair with his parents. It is the festival of spring and everyone in a happy mood. ये कैसा फेस्टिवल है? स्प्रिंग का, और सभी व्यक्ति इन अ हैप्पी मूड, एक अच्छे मूड में हैं. is going to the fair because they were going to the fair. The child is going to the fair with his parents. He is very happy and excited. On the way to the fair, रास्ते में जाते समय he sees many things. वो काफ़ी चीज़ें देखता है और enjoy करता है हर मोमेंट को, और गेट्स फैसिनेटेड टूवर्ड्स नेचुरल ब्यूटी, और नेचुरल ब्यूटीज़ के प्रति वो अपने आप को फैसिनेट करता है. जो बच्चा है वो देखता है नेचर्स की क्रिएशंस को, लाइक he is engrossed in collecting beautiful flower petals. The very next moment he is appreciating the gait of the swan. The child is enjoying the beauty of nature. That's why he keeps lagging behind his parents on the way. In the fair, the child is attracted towards sweets and toys. वो किससे अट्रैक्ट होता है जब फेयर में पहुंचता है? स्वीट्स, टॉयज विच इज़ डिस्प्लेड इन द शॉप्स. He feels attracted towards the garland of गुलमोहर. गुलमोहर की गार्लैंड से वो अट्रैक्ट होता है, एंड द डिलीशियस गुलाब जामुन से, बट हिज पेरेंट्स रेसिस्ट. उसके पेरेंट्स हैं वो मना कर देते हैं उसे खरीदने के लिए. जो चाइल्ड है वांट्स टू प्ले, चाहता है प्ले करना, क्लाइंब करना ट्रीज पे, कैच करना ड्रैगन फ्लाइज को एंड बटरफ्लाइज को, बट अगेन हिज पेरेंट्स वोट लेट हिम डू एनी ऑफ दिस. उसके पेरेंट्स ये सभी चीज़ें करने से उसे मना कर देते हैं. द चाइल्ड सीज स्नेक चार्मर को देखता है. ही लाइक्स म्यूज़िक प्लेड बाय द चार्मर. पसंद करता है म्यूज़िक को जो कि प्ले किया जाता है चार्मर के द्वारा. एंड वॉन्ट्स टू स्टे देयर फॉर सम टाइम. वो वहाँ रुकना चाहता है, बट हिज पेरेंट्स डू नॉट अप्रूव. वो उसे सहमति नहीं देते. एज द चाइल्ड मूव्स ऑन विद हिज पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स के साथ वो मूव करता है. ही सीज अ राउंड अबाउट. वो एक राउंड अबाउट मीन्स स्विंग, झूले को देखता है वो. देन ही सेज आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज फादर एंड मदर.
फिर वो रिक्वेस्ट करता है वो बच्चा अपने पेरेंट्स से कि मुझे इस राउंड अबाउट के में झूलना चाहता हूँ मैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द चाइल्ड गेट्स लॉस्ट इन द फेयर। नेक्स्ट पॉइंट इज द चाइल्ड गेट्स लॉस्ट इन द फेयर। अब वो बच्चा है जो फेयर में गुम हो जाता है। आफ्टर रिक्वेस्टिंग हिज पेरेंट्स बोल्डली फॉर अ राउंड अबाउट द चाइल्ड टर्न्स बैक बट to his surprise no sign of his parents is there. He searches for his parents here and there. The child realizes that he is now separated from his parents and he is lost. He starts crying bitterly. After requesting his parents, से रिक्वेस्ट करने के बाद कि वो राउंड अबाउट पे झूलना चाहता है, वो बच्चा टर्न होता है बट सरप्राइज होता है देख कर कि उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं थे। ही सर्चेज, वो सर्च करता है अपने पेरेंट्स को इधर उधर। जो बच्चा है वो रियलाइज़ करता है दैट ही इज़ नाउ सेपरेटेड, कि वो अब सेपरेट है फ्रॉम हिज पेरेंट्स से एंड ही इज़ लॉस्ट, और वो लॉस्ट हो चुका है। ही स्टार्ट्स क्राइंग बिटरली, अब वो बुरी तरीके से रोना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लाइक दिस, अ काइंड हार्टेड मैन मीट्स द चाइल्ड। अब जो दूसरा व्यक्ति है काइंड हार्टेड मैन, जो कि उस बच्चे को मिलता है, उसकी हेल्प करता है। देयर इज़ अ बिग क्राउड एंड द लिटिल चाइल्ड ट्राइज टू मेक हिज वे बिटवीन द फीट ऑफ द पीपल। देयर, वहाँ पर एक बिग क्राउड है जहाँ वो गुम हो गया है उस मेले में। एंड द लिटिल चाइल्ड, और जो छोटा बच्चा है वो कोशिश करता है अपना रास्ता बनाने के लिए बिटवीन द फीट ऑफ द पीपल। After hearing the cry of the child, a gentleman lends a helping hand to him. जब उसकी एक व्यक्ति आवाज़ सुनता है उसके रोने की उस बच्चे के, तो एक जेंटलमैन होता है, वो अपना हेल्पिंग हैंड आगे बढ़ाता है उसके लिए। दिस जेंटलमैन ऑफर्स, अब वो उसे चुप कराने के लिए ऑफ़र करता है गुडीज़ को एंड जॉय राइड्स को इन ऑर्डर टू कंसोल द लॉस्ट चाइल्ड, बट द चाइल्ड विल हैव नन ऑफ देम। किंतु चाइल्ड उनमें से किसी भी चीज़ को नहीं लेना चाहता और इन सब के बजाय वो क्या चाहता है, केवल अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो फर्स्ट जो पॉइंट है वो यह है कि जो चाइल्ड है वो स्प्रिंग फेयर में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ में। वहाँ वो क्या क्या चीज़ें देखता है, किन किन चीज़ों से वो अट्रैक्ट करता है। सेकंड पॉइंट में इन सब चीज़ों को देखते हुए वो अपने पीछे से पेरेंट्स से पीछे गुम हो जाता है, उसके पेरेंट्स गुम हो जाते हैं और वो लास्ट में चाहता है राउंड अबाउट पे झूलने के लिए, बट जैसे ही वो टर्न होता है उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट इज़, अब वो जो बच्चा है वो एक काइंड हार्टेड मैन से मिलता है। वो व्यक्ति उसे चुप कराने के लिए उन सभी चीज़ों को ऑफ़र करता है जो चीज़ें वो पहले पॉइंट में लेना चाहता था, बट अब वो उन सभी चीज़ों को मना कर देता है, उनमें इंटरेस्ट शो नहीं करता है बिकॉज ही वॉन्ट्स हिज फादर एंड हिज मदर। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू some sentences which is highlight this chapter. So first is, at the time of the village spring fair, a child goes to the fair with his parents. Second, on the way to the fair, the child is lagging behind his parents because of the various distractions of the on the way. They have to keep on telling him to catch up with them. फर्स्ट में बच्चा जाता है अपने पेरेंट्स के साथ फेयर को देखने के लिए। सेकंड में वो अट्रैक्ट होता है उन चीज़ों से, इसलिए वो अपने पेरेंट्स से पीछे रह जाता है क्योंकि उसे डिस्ट्रैक्ट करती हैं वो सब चीज़ें जो कि रास्ते में होती हैं। एट द फेयर, और अब फेयर के अंदर वो स्वीट से अट्रैक्ट होता है, टॉय से, फ्लावर गार्लैंड से, जो कि सेल के लिए रखे हुए हैं। बट ही डज़ नॉट टेक डेयर आस्क, किंतु उसमें साहस नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स को कह सके कि वो उन्हें वो चीज़ दिलाएं, क्योंकि उसे पता है कि वो मना कर देंगे। देन ही सीज, और लास्ट में वो एक राउंड अबाउट को देखता है और हिम्मत करके रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स से, बट जब वो अपने पेरेंट्स को टर्न होकर देखता है, जब उसे कोई आंसर नहीं मिलता कि उसके पेरेंट्स हैं वो उसे नहीं मिल रहे हैं और वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो चुका है। आफ्टर हरीडली सर्चिंग, और काफ़ी टाइम देखने के बाद में, इधर उधर देखने के बाद में
उसे रियलाइज़ कर होता है कि वो अपने पेरेंट्स से अलग हो चुका है, इसलिए वो बुरी तरीके से रोना स्टार्ट करता है। इन द लास्ट अ काइंड मैन सीज हिम, एक व्यक्ति उसे देखता है, उसे रियलाइज़ होता है उसके दुख के बारे में। वो ऑफ़र करता है उस बच्चे को कि ये सभी चीज़ें वो परचेज़ कर ले, बट लास्ट में वो बच्चा मना कर देता है और वो कहता है कि ही वांट्स ओनली हिज पेरेंट्स। दस द स्टोरी एंड्स। So students, I hope you must have understood this story. Thank you so much.